The 7 golden formulae for uniform acceleration motion along straight line. 3 conventional formula पहले तो हम लोग देख चुके हैं what is uniform acceleration motion. A body is said to be in uniform acceleration motion if it is driven by a constant force. Remember, I am not using Book's definition. If it is driven by a constant force. अच्छा, दूसरा होगा for uniform acceleration motion in straight line or along straight line, that is called one dimensional motion. हम लोग सारे कुछ फॉर्मूला डेवलप किए. पहला था v is equal to u plus at. दूसरा हुआ s is equal to ut plus half d square. तीसरा हुआ v square is equal to u square plus 2as. चौथा हुआ displacement in the nth second of motion is u plus a by 2 into 2n minus 1. नहीं, u plus a by 2 into 2n minus 1. Next हुआ for uniform acceleration motion along straight line, the average velocity between any two instants is half of sum of instantaneous velocities. मतलब कोई पार्टिकल जा रहा था यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन मोशन में, that too along straight line, ध्यान रहे स्ट्रेट लाइन में जा रहा था. एक समय में उसका वेलोसिटी v1 था, दूसरे समय में उसका वेलोसिटी v2 था. उस समय के बीच में उसका एवरेज वेलोसिटी क्या था? v1 plus v2 by 2. ठीक है. और उसका नेक्स्ट हुआ फॉर ए पार्टिकल स्टार्टिंग फ्रॉम रेस्ट मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन, the distances traveled in consecutive equal time intervals are in the ratio 1:3:5:7:9, so on. For a particle moving with constant acceleration, maybe its initial velocity is 0, may not be its initial velocity 0, but the distances traveled in consecutive equal intervals of time are in AP. And third one, if the particle starts from rest and moves with constant acceleration and it travels equal consecutive distances x0, 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 x0 in times t1, t2, t3, t4, etc., then the ratio t1 is to t2 is to t3 is to t4, etc. is equal to 1:√2 minus 1 is to √3 minus √2 is to √4 minus √3 is to √5 minus √4. You understand? Okay. चलिए देखते हैं कि ये सारा फॉर्मूला को हम लोग कैसे काम में लगाते हैं. Let us start with the questions. ठीक है. Question number 1. See how I solve this question. This is a very simple question. ऐसा कोई भी बच्चा नहीं होगा जो ये क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकता है. हर कोई कर सकता है. But please see how I am doing it. A particle starting from rest moves with constant acceleration till its velocity becomes 20 meter per second in 5 seconds. मैं इसको दो अलग अलग तरीके से सॉल्व कर सकता हूँ. पहला हुआ फर्स्ट मेथड. मैं कहूँ कि as the particle is moving with constant acceleration, इनिशियल वेलोसिटी क्या था? 0. फाइनल वेलोसिटी क्या था? 20 मीटर पर सेकेंड. और कितना समय के बाद था? ये कुछ 5 सेकेंड के बाद था. ठीक है. हम जानते हैं एवरेज वेलोसिटी फॉर दिस टाइप ऑफ मोशन इज u plus v by 2, but average velocity is total displacement by total time, that is u plus v by 2. क्या मिल गया? s का वैल्यू u plus v by 2 into t. कितना हो गया? u तो 0 है, v तो 20 है. 20 plus 0 is 20 by 2 is 10 into 5 is 50 मीटर. ये हुआ एक मेथड. इतना ओरल तो कैलकुलेशन आप कर सकते हो. दूसरा मेथड हाउ यू कैन थिंक. सपोज आई वांट टू यूज इट ग्राफिकली. I want to see how is the motion of the particle using the velocity time diagram. The particle starts from rest, okay, then it moves with constant acceleration, means the graph will be a straight line. अच्छा, कब तक? जब तक उसका स्पीड 20 मीटर पर सेकेंड नहीं हो जाता है. कितनी समय में? 5 सेकेंड में. पूछा है डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालते हैं? एरिया अंडर द डायग्राम. सो डिस्प्लेसमेंट इज एरिया अंडर द डायग्राम, दैट इज हाफ बेस इनटू हाइट 50 मीटर. कहने का मतलब है आप अपना कन्वेंशनल तरीके से कर सकते हो. पहले आप एक्सीलरेशन निकाल दो, फिर s इक्वल टू ut प्लस हाफ स्क्वायर करके करो, वो सब कर सकते हो. बट सी हाउ आई डिड इट. अगर आप भी ऐसे किए हो तो बहुत बढ़िया है. यू आर हैविंग ए एनलाइटेड ब्रेन. क्वेश्चन नंबर 2. A particle starting from rest moves with constant acceleration and moves 20 meter in the 5th second of motion. Starting from rest. Solution क्या दिया है?
सॉल्यूशन दिया है कि u इज 0 एंड यू नो द डिस्प्लेसमेंट इन द nth सेकंड इज u प्लस a/2 into 2n minus 1। हमें क्या पूछा है, u पूछा है, कितने डिस्प्लेसमेंट पूछा है, कौन सा सेकंड में, 9 सेकंड में। u तो 0 है, u अगर 0 है तो डिस्प्लेसमेंट इन द 9th सेकंड क्या हो जाएगा, u तो 0 है, a/2 into 2 into 9 minus 1। डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकंड में दिया है, डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकंड इज a/2 into 2 into 5 minus 1। जस्ट डिवाइड कर दो, डिस्प्लेसमेंट इन द 9th सेकंड बाय डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकंड इज इक्वल टू a/2 तो खा गए एक दूसरे को। 18 minus 1 इज 17 बाय ये 10 minus 1 इज 9 और डिस्प्लेसमेंट इन द 5th सेकंड तो दिया हुआ है 20 मीटर्स। तो डिस्प्लेसमेंट in the 9th second of motion is 17 by 9 into displacement in the 5th second multiply 20 meters। कैलकुलेशन आपका काम है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? यस। A train moving with constant acceleration reaches a lamp post with speed of 6 meter per second। ठीक है, ट्रेन आके खंबे के पास पहुंचा, क्या स्पीड में, 6 मीटर पर सेकेंड में। आफ्टर 20 सेकेंड रीच द पोस्ट विथ 18 मीटर पर सेकेंड। जब तक वो पार किया तब तक उसका स्पीड बढ़ गया था 18 मीटर पर सेकेंड। फाइंड लेंथ ऑफ द ट्रेन। ये तो बड़ा अजीब गरीब क्वेश्चन हुआ। लेट अस सी, सपोज ये एक खंबा था, ट्रेन इधर से आ रहा था कांस्टेंट एक्सीलरेशन में। जब आके ट्रेन यहाँ पे पहुंचा, ट्रेन का लेंथ कितना है मालूम नहीं, जब पहुंचा ट्रेन का स्पीड था 6 मीटर पर सेकेंड। जब ये खंबा को लीव कर रहा था, क्रॉस करके निकल गया है, मतलब यहाँ पे आ गया है। जब वो ट्रेन यहाँ पे आ गया है तब वो क्या हुआ है, तब उसका स्पीड बदल गया है। कितना बन गया है स्पीड हैज बिकम समथिंग लाइक 18 मीटर पर सेकेंड। ओहो, अब ये खंबे को पार हो गया है। अच्छा, जब तक वो खंबा को क्रॉस करेगा ट्रेन का डिस्टेंस कितना होगा, इट इज L, द लेंथ ऑफ द ट्रेन। ट्रेन कितना डिस्टेंस गया होगा खंबे को क्रॉस करने के लिए, अपना लेंथ। ये ट्रेन था, ये ट्रेन आके यहाँ पर पहुंचा, खंबे को पार करना, जब तक पार करेगा उसको कितना दूर जाना है, जितना उसका अपना लेंथ है। सो हम कहेंगे डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन is equal to तो क्या देखा, जब तक ये लैंप पोस्ट को क्रॉस कर रहा है डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन इज इक्वल टू लेंथ ऑफ द ट्रेन। अच्छा, ये ट्रेन कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा था, तो आप क्या कहोगे, एवरेज वेलोसिटी ऑफ ट्रेन इट इज इनिशियल वेलोसिटी प्लस फाइनल वेलोसिटी बाय 2 इज 12 मीटर पर सेकेंड। लेकिन एवरेज वेलोसिटी होता क्या है, टोटल डिस्प्लेसमेंट बाय टोटल टाइम, दैट इज 12। इसका मतलब s कितना है, 12 into t। t कितना दिया गया था, 20 सेकेंड्स। सो 12 into 20 इज 240 मीटर। This is the distance moved by the train by the time it crosses the lamp post. So length of the train is 240 meter। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पाया? सिंपल है कि नहीं, हो गया कि नहीं हो गया? यस। चलिए अब हम धीरे धीरे डिफिकल्ट क्वेश्चन में जा रहे हैं। अभी तक तो लुदु बुदु क्वेश्चंस कर रहे थे, तब धीरे धीरे ऊपर जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 को थोड़ा देखो। आई एम मेकिंग सम स्पेस हियर, आई विल ओमिट, इसको मिटा देता हूं। ठीक, ए ट्रेन हैज लेंथ 100 मीटर। अच्छा, एक ट्रेन है जिसका लेंथ कितना है, 100 मीटर है और चलना शुरू किया। इनिशियल वेलोसिटी 0, एक्सीलरेशन कितना था, 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एक्सीलरेशन था 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ट्रेन चल रहा है, चुक 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 चुक।
अब क्या हुआ, जो एक आदमी जिसको इंजन में बैठना चाहिए था वो पीछे रह गया था। तो जैसे देखा कि ट्रेन चलने लगा, वो भागने लगा, क्या स्पीड में, भी में। क्या करना है उसको, इंजन के पास पहुंचना है और इंजन में जाना है, उसको भागने लगा। पहले आप बताइए कि अगर वो आदमी भाग के आके इंजन में पहुंचेगा, आदमी को कितना दूर दौड़ना पड़ेगा, 100 मीटर और मोर देन 100 और लेस देन 100। हाउ मच डिस्टेंस द मैन हैज टू रन। अगर ट्रेन चुपचाप खड़ा रहता है तो उसको 100 मीटर दौड़ना पड़ता है, लेकिन ट्रेन भी तो चल रहा है, तो आदमी को कितना दौड़ना पड़ेगा, 100 मीटर और मोर देन 100। मोर देन 100, ये समझ में आ रहा है। लेकिन आदमी को कितना दौड़ना पड़ेगा वो नहीं पूछा गया। पूछा गया बताओ कितनी समय के बाद पहुंचेगा। चलो मानते हैं कि जब ट्रेन आके यहां पर पहुंच गया, तब ये आदमी दौड़ते 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 यहां पे आ गया और घुस गया अंदर। कब, कितनी समय के बाद, यही तो पूछा गया है। यही तो पूछा गया कि कितनी समय के बाद ये पहुंचेगा। थोड़ा ध्यान से देखना, जो बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन से मैं नहीं करवा रहा हूं, उसको आपको प्रैक्टिस करने के लिए दे देंगे। जो थोड़ा सा टिपिकल है वो सब हम लोग कर रहे हैं। अच्छा, तो ये जो ट्रेन है, ये t सेकेंड में ये जो डिस्टेंस गया है आदमी, दिस इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन। मैन हैज गॉन दिस डिस्टेंस। ट्रेन कितना दूर गया, t सेकेंड में, यहां था, यहां पर गया। दिस इज व्हाट इज द डिस्टेंस मूव्ड बाय द ट्रेन। और ये लेंथ कितना है, ये लेंथ इज 100 मीटर, यू नो इट इज ऑलरेडी गिवन, इट इज 100 मीटर। तो क्या डिस्टेंस मूव्ड बाय ट्रेन एंड डिस्टेंस मूव्ड बाय मैन में कोई रिलेशन देख सकते हो? हाँ देख सकते हैं। आफ्टर t seconds, distance moved by the man is more than the distance moved by the train. कितना ज्यादा है, sm minus st is 100। हाँ ये समझ में आया, ये 100 मीटर। अच्छा ये क्योंकि ट्रेन का लेंथ 100 मीटर था। sm क्या है, डिस्टेंस मूव्ड बाय द मैन इन t सेकेंड्स। बिट नंबर 1 में आपको क्या दिया है, v दिया गया है। चलिए v को v ही रहने देते हैं, फिर बाद में देखेंगे। v को v ही रहने देते हैं, हम कहेंगे इट इज vt। t सेकंड में क्या है, vt। और ये कितना दूर जाएगा ट्रेन, वो तो रेस्ट से शुरू किया था, इनिशियल वेलोसिटी 0 था। t सेकंड में कितना दूर जाएगा, ut प्लस हाफ ए स्क्वायर। u तो गया 0 है, हाफ 2t स्क्वायर, हाफ 8t स्क्वायर इज इक्वल टू 100। थोड़ा सा मारपीट करो, मिलेगा vt माइनस टी स्क्वायर इज इक्वल टू 100 और टी स्क्वायर माइनस vt प्लस 100 इज इक्वल टू 0। सो दिस इज व्हाट इज ए इक्वेशन यू आर अराइविंग एट। अब v का वैल्यू दिया गया है, हमें t पूछा गया है, तो कोई भी बता देगा नहीं। नाउ लेट अस गो टू बिट नंबर 1। बिट नंबर 1 में v इज गिवन 25 मीटर पर सेकेंड। चलो वैल्यू डालते हैं, तो क्या मिला, टी स्क्वायर माइनस 25t प्लस 100 इज इक्वल टू 0। इसमें से t निकालने का फॉर्मूला आपको मालूम होगा, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, वो भी पढ़ाया जा चुका है आपको। होगी कि माइनस b मतलब प्लस 25 माइनस ऑफ माइनस 25 प्लस माइनस b स्क्वायर मतलब 25 का स्क्वायर माइनस 4ac, a is 1, c is 100, so it is 400 whole power by 2a। a कितना है, a तो t स्क्वायर का कोफिशिएंट है, वो 1 है। सिंप्लीफाई करें तो 25 का स्क्वायर होता है 625। 625 कोई भी क्वांटिटी का स्क्वायर निकालना आपको फटाफट आना चाहिए। कोई पूछेगा 65 का स्क्वायर कितना है, सिंपल है, 6 का नेक्स्ट नंबर कितना है 7, 6 को 7 के साथ मल्टीप्लाई करो, कितना हो गया 42, जस्ट राइट 25। अगर आपको कोई पूछेगा 85 का स्क्वायर कितना है, 8 का नेक्स्ट नंबर कितना है 9, 8 into 9 कितना है 72, 72 25। कोई पूछेगा 105 का स्क्वायर कितना है 10, 10 का नेक्स्ट नंबर कितना है 11, 10 into 11 कितना हो गया 110, 25। Are you getting like this? किसी भी नंबर का स्क्वायर फटाफट निकाल दो। कुछ चीजें वो लोग ऐसे देते हैं कि आप उसको यूज कर पाओगे। अच्छा 25 का स्क्वायर हो गया 625 माइनस 400 इज 225। ये 225 है, 225 का रूट ओवर होता है 15, तो इट इज कमिंग आउट टू बी प्लस माइनस 15/2। अभी अगर हम प्लस 15 लेंगे तो 40/2 हो गया 20 सेकेंड्स, और माइनस 15 लेंगे तो 10/2 हो गया 5 सेकेंड्स। बड़ा अजीब गरीब आंसर आ रहा है।
पूछा है कब पहुंचेगा ट्रेन के पास, इंजन के पास, दो ठो आंसर आया, 5 सेकंड में भी पहुंचेगा, 20 सेकंड में भी पहुंचेगा। ऐसा कैसा हो सकता है? हो सकता है क्या? लेट अस थिंक, लेट अस थिंक। इसलिए तो पूछा है एक्सप्लेन द डबल आंसर। वो आदमी ट्रेन के पास 2 बार पहुंचेगा, इंजन के पास एक 5 सेकंड में, एक 20 सेकंड में, ऐसा कैसा हो रहा है? समझे? तो ट्रेन चलने लगा कांस्टेंट एक्सीलरेशन में, आदमी बहुत जोर से भागने लगा, बहुत जोर से भागने लगा, तो पता चला भागते 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 मान लो आके पहुंचा 5 सेकंड के बाद, 5 सेकंड के बाद इंजन के पास पहुंचा। फॉर्मूला से पता चल रहा है। सपोज वो आदमी रुकेगा नहीं और भागते ही रहेगा, भागते ही रहेगा, भागते ही रहेगा। अब ट्रेन तो एक्सीलरेट कर रहा है, ट्रेन का स्पीड धीरे धीरे बढ़ रहा है। कुछ समय के बाद ट्रेन आके आदमी के पास पहुंचेगा। पहले आदमी पहुंचा इंजन के पास, पार करके निकल गया। आदमी पहुंचा इंजन के पास 5 सेकंड में और मान लो पार करके भाग गया। तो फिर बाद में पीछे से ट्रेन आया, उसके पास पहुंचा कब? t 20 सेकंड में। मतलब वो आदमी इंजन के पास 2 बार पहुंचा, एक बार वो खुद पहुंचा, दूसरी बार ट्रेन पहुंचा, है कि नहीं? तो हम कहेंगे एक 5 सेकंड में एक बार पहुंच रहा है, 20 सेकंड में एक बार पहुंच रहा है। क्या आपको डबल आंसर का मतलब समझ में आ गया? यस सर, नो? डबल आंसर का मतलब समझ में आ गया। मतलब 5 सेकंड में पहले ट्रेन आदमी आके इंजन के पास पहुंचता है, 20 सेकंड में पीछे से इंजन जाके आदमी के पास पहुंचता है। ठीक है, तो ये होगी डबल आंसर। लेट अस गो टू द सेकंड बिट। फाइंड मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर व्हिच ही रीचेस द इंजन। मान लो ट्रेन जा रहा था 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर में और उसका लेंथ है 100 मीटर। ये आदमी धीरे धीरे चलने लगेगा, मान लो 1 मीटर पर सेकंड में जाएगा। इंजन के पास पहुंच पाएगा क्या? नहीं पहुंच पाएगा, ट्रेन तो चल देगा, पहुंच नहीं पाएगा। कम से कम कितना स्पीड में जाना चाहिए कि इंजन के पास पहुंच पाएगा? कम से कम कितना स्पीड में जाना चाहिए कि वो इंजन के पास पहुंच पाएगा? थोड़ा इस आंसर को ध्यान दीजिए। व्हाट इज द मिनिमम वैल्यू ऑफ v फॉर व्हिच ही इज एबल टू रीच द इंजन? थोड़ा ध्यान लगाइएगा मेरे यार, देखो थोड़ा मुश्किल चीज है। अगर थोड़ा ये आंसर को देखो, वो आदमी 25 मीटर पर सेकंड में दौड़ा, 2 बार पहुंचा इंजन के पास। सपोज वो आदमी 30 मीटर पर सेकंड में दौड़ता, तो इंजन के पास कितने बार पहुंचता? हाउ मेनी टाइम्स? 2 बार पहुंचता, एक खुद पहुंचता, फिर भाग जाता, फिर इंजन आके पहुंचता। अगर वो 30 मीटर पर सेकंड में जाता, इंजन के पास 2 बार पहुंचता। अच्छा, अगर वो आदमी 1 मीटर पर सेकंड में जाता तो पहुंच ही नहीं पाता। अच्छा, अगर वो ऐसा स्पीड में गया, मिनिमम स्पीड, जस्ट पहुंचने वाला स्पीड, उसी स्पीड में जाएगा तो इंजन के पास जस्ट पहुंचेगा और उसके बाद इंजन फिर आगे निकल जाएगा, है कि नहीं? तब चढ़ गया तो चढ़ गया, नहीं तो इंजन आगे निकल जाएगा। मतलब हाउ मेनी रूट्स दिस शुड हैव? अगर वो मिनिमम स्पीड में दौड़ रहा है, मिनिमम v में दौड़ रहा है, दिस इक्वेशन मस्ट हैव ओनली 1 रूट, है कि नहीं? तो क्या लिखेंगे? बिट नंबर 2 के बात कर रहे हैं। फॉर मिनिमम v टू रीच इंजन देयर मस्ट बी ओनली 1 सॉल्यूशन। ठीक है ना? एक सॉल्यूशन होना जरूरी है। फॉर द इक्वेशन t स्क्वायर माइनस vt प्लस 100 इज इक्वल टू 0, इसका एक सॉल्यूशन होना जरूरी है। ठीक है, 1 रियल सॉल्यूशन होना जरूरी है, एक सॉल्यूशन होगा। अच्छा, कोई एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होता है आप जानते हो कैसे होता है? वो माइनस बी प्लस और माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac बाई रूट ओवर बाई 2a, ऐसा होता है सॉल्यूशन। नहीं, रूट्स ऐसे होते हैं। अब एक सॉल्यूशन होगा कब? जब ये क्वांटिटी हो जाएगा 0, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा, ये क्वांटिटी 0 हो जाएगा तो प्लस 0 लेके एक बार निकालो, माइनस 0 निकाल के एक बार निकालो, आंसर तो सेम ही आएगा, है कि नहीं? तो हम कहेंगे फॉर सो बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0, बी स्क्वायर माइनस 4ac मस्ट बी इक्वल टू 0। तो क्या मिला है यहाँ पर? b के जगह क्या है? 20 v है, सो v माइनस b का स्क्वायर माइनस 4ac, 4a कितना है? a कितना है? 1, 1, c कितना है? 100,
दिस मस्ट बी इक्वल टू 0। तो कितना आया, v स्क्वायर इज इक्वल टू 400, मतलब v कितना आया 20 मीटर पर सेकेंड। अगर वो 20 मीटर पर सेकेंड में दौड़ेगा तो क्या होगा, एक समय मिलेगा उसको पहुंचने के लिए। रीच द इंजन ओनली वंस। और चढ़ गया तो चढ़ गया, नहीं तो ट्रेन पार कर गया। सो व्हाट इज द मिनिमम स्पीड विथ व्हिच ही शुड रन सो दैट ही कैन रीच द इंजन, दैट इज 20 मीटर पर सेकेंड। क्या मैं सबको ठीक ठाक समझा पा रहा हूं? Yes, sir. Yes. Yes. क्या किया, two particles start from same point and move in same direction. A moves with constant velocity 12 मीटर पर सेकेंड। A और B एक जगह से शुरू किए, A चलने लगा कांस्टेंट वेलोसिटी में 12 मीटर पर सेकेंड में। अच्छा, 12 मीटर पर सेकेंड में। B स्टार्ट किया रेस्ट से, इसका इनिशियल वेलोसिटी 0 था लेकिन एक्सीलरेशन था 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। B starts from rest and moves with constant acceleration 4 meter per second square. After what time they will be close to each other again? कितने समय के बाद दोनों एक दूसरे के पास होंगे फिर से। थोड़ा सा रुकिए आप, पहले हम चाहते हैं कि आप हम लोग सब मिलके विथ इंटरेक्शन इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि थोड़ा टेढ़ा क्वेश्चन है, दिमाग में आएगा नहीं। पहला बिट सिंपल है, दूसरे बिट में थोड़ा एक्स्ट्रा दिमाग की जरूरत होता है। इट्स नॉट ए वेरी इजी क्वेश्चन, आपको थोड़ा रीजनिंग लगाना पड़ेगा सोचने के लिए। पहले आप बताइए, अगर ये इनिशियल वेलोसिटी 0 से स्टार्ट किया कौन, B, और A का शुरू में वेलोसिटी कितना था 12 मीटर पर सेकेंड, ये u0 था, A था 4। क्या बता सकते हैं शुरू में कौन आगे चलेगा, A और B? A और B कौन आगे चलेगा बताओ? A चल रहा है 12 मीटर पर सेकेंड में, हाँ A ही चलेगा। यस, क्योंकि B का स्पीड तो 0 है, धीरे धीरे स्पीड बढ़ा रहा है, पहले 1 2 3 4 5 6 4 है, जबकि इसका तो ऑलरेडी 12 है, स्विंग करके निकल जाएगा। मतलब थोड़ी ही देर के बाद, थोड़ी समय के बाद आप देखोगे A कुछ यहाँ पे, B कुछ यहाँ पे, चलो इसको हम A1 B1 कहते हैं। अब भी A इधर जा रहा है, B इधर जा रहा है, लेकिन A का स्पीड तो कांस्टेंट है 12 मीटर पर सेकेंड, B एक्सीलरेटर दबा के रखा है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर वाला, तो क्या हो रहा है, B का स्पीड बढ़ रहा है। तो कुछ समय के बाद, काफी समय के बाद अगर देखेंगे, बहुत ज्यादा समय के बाद कौन आगे रहेगा, A और B? B। बहुत ज्यादा समय के बाद B का स्पीड बहुत ज्यादा हो गया होगा ना, वो पूरा आगे रहेगा, A तो 12 में ही जा रहा है ना, तो काफी समय के बाद B रहेगा आगे, ये था A। काफी समय के बाद B रहेगा, ये कहो B3, A रहेगा पीछे। मतलब एक समय पक्का आया होगा जब B A को क्रॉस करके आगे निकल गया होगा। मान लो ये समय है जब B आया था B2 में, A आया था A2 में। अब देखो, क्या मैं सबको ये स्टेटस समझा पाया? ये एक समय में A1 B1 है, दूसरे समय में A2 B2 है, तीसरे समय में A3 B3 है। So there are 3 different cases we are analyzing. Initially A leads, B lags. कुछ समय के बाद B overtakes A, काफी समय के बाद B आगे A पीछे। ठीक है, हमें क्या पूछा गया? हमें पूछा गया है कब वो दोनों एक दूसरे के नजदीक होंगे। कब नजदीक होंगे? जब B A को ओवरटेक कर रहा होगा। जब B A को ओवरटेक कर रहा होगा तब ये दोनों एक दूसरे के नजदीक होंगे। तो हम कहेंगे बिट नंबर 1 में they are close to each other when B overtakes A। अच्छा, जब B A को ओवरटेक कर रहा है, जब B A, let it happens after t seconds। तो जब B A को ओवरटेक कर रहा होगा, दोनों एक जगह से शुरू किए थे, जब B A को ओवरटेक करके जा रहा है, क्या आप बता सकते हो किसका डिस्प्लेसमेंट ज्यादा हुआ होगा, A का कि B का?
सेम हुआ होगा, ये भी यहां तक आया, ये भी यहां तक आया, तभी ना ये इसको क्रॉस कर रहा है, सेम हुआ होगा। इसका मतलब डिस्प्लेसमेंट ऑफ बी मस्ट बी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट ऑफ ए। बी का डिस्प्लेसमेंट कितना है, ut प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, यू तो 0 है, हाफ 4 टी स्क्वायर है कि नहीं। अच्छा, ए का डिस्प्लेसमेंट वो तो 12 मीटर पर सेकंड में जा रहा था, कांस्टेंट स्पीड में जा रहा था, 12 इंटू टी। सॉल्व करो तो क्या टी का वैल्यू मिल गया, हाँ मिल गया, एक टी इधर से कट गया, इधर हो गया 2t इक्वल टू t इक्वल टू 6 सेकेंड। सो दे आर अगेन क्लोज टू ईच अदर आफ्टर ए टाइम ऑफ 6 सेकेंड्स। क्या पहला बीट सबको क्लियर हो गया? Yes, sir. यस। अब दिमाग लगेगा दूसरे बीट में, बिफोर दिस टाइम, मतलब बिफोर इट ओवरटेक्स, मतलब बिफोर t इक्वल टू 6 सेकेंड, एट व्हाट टाइम द डिस्टेंस बिटवीन देम वाज मैक्सिमम। उससे पहले दोनों पास पास नहीं थे, दोनों आगे पीछे थे, तो वो जो आगे पीछे थे उनके बीच में कुछ डिस्टेंस तो होगा। ये डिस्टेंस मैक्सिमम कब था, कितनी समय पे, एट व्हाट टाइम डिस्टेंस बिटवीन देम वाज मैक्सिमम। चलिए इसको सोचते हैं। तो बीट नंबर 1 को हमें समझ में आ चुका है, तो अब हमारा क्वेश्चन क्या बन गया, बिफोर t इक्वल टू 6 सेकेंड एट व्हाट टाइम द डिस्टेंस बिटवीन देम वाज मैक्सिमम। अब हमें ये समझ में आ चुका है कि a आगे कुछ वेलोसिटी में जा रहा है जिसको हम va कहेंगे, b पीछे है ना, कुछ वेलोसिटी में जा रहा है vb बदल रहा है, va कांस्टेंट है, और इन दोनों के बीच में डिस्टेंस s है। कब, t इक्वल टू 6 सेकेंड से पहले हाल a से था, क्योंकि a आगे था b पीछे था। ये डिस्टेंस कौन सा समय पे मैक्सिमम था? देखिए व्हेन vb इज लेस देन va, ये आगे है ये पीछे है, इसका स्पीड कम है, तो आप क्या कहोगे, दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था वो बढ़ रहा था कि घट रहा था? शुरू में b पीछे था, a आगे था, b का स्पीड 0 से बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है। जब तक b का स्पीड a का स्पीड से कम है, दोनों के बीच में डिस्टेंस बढ़ रहा था कि घट रहा था? हाँ, कैसे घटेगा, b पीछे है भाई, b पीछे धीरे धीरे जा रहा है, a आगे जोर से जा रहा है, तो डिस्टेंस बढ़ेगा कि घटेगा? बढ़ेगा, बढ़ेगा। यस, डिस्टेंस वाज इंक्रीजिंग। अच्छा, a का स्पीड तो कांस्टेंट है, कितना 12, b लेकिन अपना स्पीड बढ़ा रहा है, तो पक्का एक समय आया होगा जब b का स्पीड a का स्पीड का बराबर हो गया होगा। अब a आगे b पीछे, दोनों का स्पीड बराबर, डिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? डिस्टेंस बढ़ रहा है कि घट रहा है? दोनों बराबर स्पीड में जा रहे हैं, डिस्टेंस रिमेन सेम, डिस्टेंस रिमेन सेम, ना बढ़ रहा है ना घट रहा है। अच्छा, उसके बाद b तो एक्सीलरेटर दबा के रखा ना, b का स्पीड बढ़ रहा है, मतलब एक समय आया होगा जब b का स्पीड भी a का स्पीड से ज्यादा हो जाएगा, लेकिन तब भी b a से पीछे है, b पीछे है, a आगे, b का स्पीड a से अभी ज्यादा हो गया। अब दोनों के बीच में डिस्टेंस क्या होगा, बढ़ेगा कि घटेगा? b पीछे है, a आगे है, b का स्पीड ज्यादा है, a का स्पीड कम है, डिस्टेंस विल डिक्रीज। अब ये सारा कहानी को एक बार ध्यान से सोचो और समझने की कोशिश करो। Sir, d equal to 3. हाँ, यस यू आर करेक्ट। तो हम देखेंगे यहाँ पे दोनों के बीच में जो डिस्टेंस था पहले बढ़ा, फिर कांस्टेंट हो गया, फिर घटने लगा। दो पार्टिकल के बीच में डिस्टेंस बढ़ने लगा, कांस्टेंट हो गया, फिर घटने लगा। मतलब मैक्सिमम कब था दोनों के बीच में डिस्टेंस? कब दोनों के बीच में डिस्टेंस मैक्सिमम था? when the VA was equal to VB। समझ में आया क्या? तो क्या कंक्लूजन मिला? 10 10 10 S is maximum when VA is equal to VB। देखो आप में से कोई आंसर बता चुका है, साइटोस बता चुका है। VA इक्वल जब VB होगा तभी S मैक्सिमम होगा। मान लो कब होगा? T सेकंड के बाद। लेट इट happens after T seconds। तो T सेकंड में VA
इज इक्वल टू वीबी। क्या मतलब देता है? VA तो हरदम 12 है, VB कितना था? V इज इक्वल टू U प्लस 80। U तो 0 है, U प्लस 80, U प्लस 80 में U 0 है, A है 4 इंटू T, इसका मतलब T इक्वल टू 3 सेकेंड्स। कितना इंटरेस्टिंग है। क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं? Yes, sir. यस। Yes, sir. Yes, sir. A particle moving with constant acceleration along a straight line moves 20 meter in first 3 seconds and 28 meter in the next 3 seconds. Find the total distance moved in 9 seconds. बड़ा खूंखार क्वेश्चन है, ऑलमोस्ट सारे बुक में है। वो क्या करते हैं, ऐसे करते हैं, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। वो करते हैं लेट u इज इनिशियल वेलोसिटी, a इज एक्सीलरेशन, तो पहला 3 सेकंड में इतना दूर गया, u और a का दूसरा इक्वेशन मिला, फिर 6 सेकंड में कितना गया, 20 प्लस 28, दूसरा इक्वेशन मिला, देयर आर टू अननोन्स u and a, सॉल्व फॉर द वैल्यू ऑफ u and a, देन यू फाइंड इन 9 सेकंड्स कितना दूर जाएगा। क्या मेरी बात आपको समझ में आया? बुक वाला मेथड में तो पहले लिख देता हूं ताकि आपको पता चलेगा कि मेरा मेथड का अहमियत कितना है। फर्स्ट मेथड ये है, तो इन 3 सेकेंड्स जो डिस्टेंस आता है वो कितना होगा, 3u प्लस हाफ a 3 स्क्वायर, और वो डिस्टेंस कितना गया है 28 मीटर, सॉरी 20 मीटर्स इन 6 सेकेंड्स। कितना गया है 20 प्लस 28 48 मीटर, कितना है 6 सेकेंड में 6u प्लस हाफ a 6 का स्क्वायर। सो इन 9 सेकेंड्स कितना जाएगा, s निकालना है, 9u प्लस हाफ a 9 स्क्वायर। सॉल्व दिस टू इक्वेशंस, get the value of u and a, two unknowns, two equations. Once you get the value of u and a, put here, you will get the value of s. This is the approach of the book and many other, जो ऐसे करते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग ऐसे नहीं करेंगे, हम लोग कुछ दूसरा करेंगे। शायद ये मेथड सबको समझ में आ गया, ये आप आराम से निकाल सकते हो। अब ये मेथड में मैं नहीं करने वाला, मैं कुछ दूसरा करूंगा। मैं क्या देख रहा हूं, क्या दिया है मुझे, क्वेश्चन में दिया गया है कि पार्टिकल इज मूविंग विद कांस्टेंट एक्सीलरेशन। अच्छा, कांस्टेंट एक्सीलरेशन में जा रहा है। इनिशियल वेलोसिटी कितना था मालूम नहीं, कुछ होगा। अच्छा चलो, कुछ भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। इनिशियल वेलोसिटी u था, एक्सीलरेशन a था। पहला 3 सेकंड में कितना दूर गया है, पहला 3 सेकंड में गया है 20 मीटर, कितना समय में 3 सेकंड में। नेक्स्ट 3 सेकंड में कितना दूर गया, नेक्स्ट 3 सेकंड में गया 28 मीटर, इट हैज गॉन 28 मीटर। अगर मैं कैसे कैसे निकाल दूंगा नेक्स्ट 3 सेकंड में कितना गया, तो हमारा काम बन जाएगा, है कि नहीं। हम जानते हैं for a particle in uniform acceleration motion along a straight line, the distances traveled in consecutive equal time intervals are in AP, है कि नहीं, they are in AP, मतलब 28 minus 20 is equal to x minus 28। समझ में आया? तो क्या लिखेंगे, here 28 minus 20, there must be a common difference is equal to x minus 28, तो इसका मतलब x हो गया 36 मीटर। टोटल डिस्टेंस मूव्ड इन 9 सेकेंड्स, कितना हो जाएगा, पहला 20, पहला 3 सेकेंड में 20, दूसरा 3 सेकेंड में 28, तीसरा 3 सेकेंड में 36। जोड़ दो, यू नो हाउ टू ऐड करना तो बहुत सिंपल है। ड्रॉ 20 लाइंस, ड्रॉ 28 लाइंस, ड्रॉ 36 लाइंस, काउंट देम टुगेदर। कितना सिंपल है एडिशन, है कि नहीं। तो मिल गया आपको x का टोटल डिस्टेंस मूव्ड इन 9 सेकेंड्स। क्या मैं सबको समझा पा रहा हूं? Yes, sir. ओके, यस। नाउ लेट अस गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन में ये हो गया, इसको अभी थोड़ा इसको साफ करता हूं, जगह नहीं। हाँ, नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है, थोड़ा ध्यान से देखो। ये कोई एक टैप है, कोई एक टैप से पानी गिर रहा है, ठीक है। ये टैप से पानी गिर रहा है, टप 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 टप। कैसे गिर रहा है, कितना हाइट में है टैप, टैप का पूरा हाइट दिया है 50 मीटर है। अच्छा ठीक है,
बोला है कि जैसे पानी गिरेगा, पहला गिरेगा, उसका पीछे दूसरा, उसके पीछे तीसरा, ऐसे करके गिरते जाएगा। रेगुलर इंटरवल में गिर रहा है, मतलब मान लो कि 2 सेकंड के गैप में गिर रहा है या 3 सेकंड का, कितना सेकंड का गैप में गिर रहा है वो दिया नहीं है, लेकिन जो भी गिर रहा है एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में गिर रहा है, मान लो t सेकंड का इंटरवल में गिर रहा है। अच्छा, फिर हुआ यूं कि जब 6th ड्रॉप नीचे पहुंचा, मतलब सॉरी, जब फर्स्ट ड्रॉप, पहला ड्रॉप जो निकला था वो जब तक आके नीचे पहुंचा, तब यहां से 6th ड्रॉप गिरने वाला है। इट इज अबाउट टू फॉल, मतलब सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ रास्ते में होंगे, ये बात होता है। इसका मतलब हुआ सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ ये सब रास्ते में होंगे। सेकेंड ड्रॉप, थर्ड ड्रॉप, फोर्थ ड्रॉप, फिफ्थ ड्रॉप रास्ते में होंगे। 6th गिरने वाला है, पहला ड्रॉप नीचे पहुंच चुका है, 6th ड्रॉप गिरना शुरू कर रहा है। अच्छा, ये सब गिर रहे हैं एक फिक्स्ड टाइम इंटरवल में। सपोज मानते हैं कि ये t सेकंड का इंटरवल में गिर रहे हैं, हर t सेकंड के बाद एक ड्रॉप गिर जाता है, टपक टपक, t सेकंड के इंटरवल में गिर रहा है। क्या आप मुझे बता सकते हो कि ये 5th ड्रॉप कितना समय का रास्ता गया है? t सेकंड का। 4th ड्रॉप 2t सेकंड का रास्ता गया है। थर्ड ड्रॉप 3t सेकंड का रास्ता गया है। सेकंड ड्रॉप 4t सेकंड का रास्ता गया है। फर्स्ट ड्रॉप 5t सेकंड का रास्ता गया है। ये आया, उसके बाद ये गिरा t सेकंड, t 2t, 3t, 4t, ये गिरने वाला है 5t, मतलब ये 5t सेकंड के लिए गया है, ये 4t सेकंड के लिए गया है, ये 3t सेकंड के लिए मूव किया है, ये 2t सेकंड के लिए मूव किया है, ये t सेकंड के लिए मूव किया है। अच्छा, तो पहला t सेकंड में कितना दूर जाता है? इतना। 2t सेकंड में इतना, मतलब दूसरा t सेकंड में कितना जाता है? इतना। 3t में कितना जाता है? इतना। तो तीसरा t सेकंड में कितना जाता है? इतना, है कि नहीं? तो आई कैन कॉल दीज डिस्टेंसेस एज, से इट इज x1, ये x2, ऐसे अगर मैं कहूं इनको, तो मैं जानता हूं कि जो डिस्टेंसेस मूव्ड इन कॉन्जिक्यूटिव इक्वल टाइम इंटरवल्स आर इन द रेशियो 1:3:5:7:9। कब? जब इनिशियल वेलोसिटी 0 होता है, मतलब पहला t सेकंड में अगर कोई x डिस्टेंस जाता है, दूसरा में कितना जाएगा? 3x, तीसरे में कितना जाएगा? 5x। ट्राई टू गेट इट। नेक्स्ट t में कितना जाएगा? 7x, नेक्स्ट t में कितना जाएगा? 9x। क्या ये बात कुछ हजम हो रहा है कि नहीं हो रहा है? दोबारा चाहिए किसी को? समझ में आ रहा है कि दोबारा चाहिए? समझ में आ गया? दोबारा चाहिए? बस दोबारा बताएंगे, दोबारा नहीं बताएंगे तो कैसे होगा? हाँ, लेकिन पहले ये बता दो, दोबारा क्यों बताएंगे? मेरा वॉइस ज्यादा सुरीला लग रहा है कि आपको समझ में नहीं आया? नहीं सर, आपका वॉइस इतना अच्छा है कि आप दोबारा बताएंगे तो अच्छा लगेगा, इसलिए कि समझ में नहीं आया। समझ में नहीं आया, मेरा वॉइस इतना अच्छा नहीं है, सॉरी, क्या करूं? अच्छा चलो ठीक है, अब यहां से क्वेश्चन को पहले हजम करो। ड्रप ड्रप करके पानी गिर रहा है, धीरे धीरे बोल रहा हूं, अब धीरे धीरे समझने की कोशिश करना। ये पहला ड्रॉप जब नीचे पहुंचा, 6th ड्रॉप निकलने वाला है, तो उसके नीचे 5th होगा, 4th होगा, 3rd होगा, 2nd होगा, 1 होगा। ये समझ में आ गया। मान लो कि t सेकंड की इंटरवल में ये ड्रॉप्स गिर रहे हैं, ठीक है, तो ये 5th ड्रॉप कितना समय का रास्ता गया है? कितना समय का? एक इंटरवल गया है t सेकंड का, ये 2t सेकंड का गया है, मतलब और t सेकंड के बाद ये 5th ड्रॉप कहां पे होगा? और t सेकंड के बाद ये यहां पे होगा, और t सेकंड के बाद ये आके यहां पे होगा, और t सेकंड के बाद ये आके यहां पे होगा। सब अपना अपना पोजीशन बदलते जाएंगे। अच्छा, पहला t सेकंड में 5th ड्रॉप यहां से यहां पर आया है, दूसरा t सेकंड में 5th ड्रॉप यहां से यहां पर जाएगा, तीसरा t सेकंड में वो यहां से यहां पर जाएगा, चौथा t सेकंड में वो यहां से यहां पर जाएगा। समझ में आ रहा है क्या? यस सर। तो पहला t सेकंड में जितना डिस्टेंस गया, दूसरा t सेकंड में जो जाता है वो 3x होता है, तीसरा में जो जाता है वो 5x, चौथा में 7x, फिर 9x, और नहीं है, नहीं तो 11x 13x चलता है कि नहीं? तो अब देखो ये टोटल
डिस्टेंस कितना हो गया इन टर्म्स ऑफ x? हियर आप कहोगे ax प्लस 3x प्लस 5x प्लस 7x प्लस 9x, ये हो गया टोटल डिस्टेंस। लेकिन टोटल डिस्टेंस कितना दिया है? 50। जोड़ो तो ये सबको कितना हो रहा है? 9 प्लस 7 16 प्लस 5 21 प्लस 3 24 प्लस 1 is 25। x is equal to 50, मतलब x कितना है? 2। x is 2 मीटर। अच्छा, तो ये x2 है। क्या पूछा? जब वो फर्स्ट ड्रॉप नीचे पहुंचा, सिक्स्थ ड्रॉप गिरने वाला है, तब फोर्थ ड्रॉप का हाइट क्या है? अरे फोर्थ ड्रॉप तो ये वाला है, इसका हाइट पता करना है। कितना हाइट है? 5x 7x 9x। तो हम कहेंगे हाइट ऑफ फोर्थ ड्रॉप इज इक्वल टू 9 प्लस 7 16 प्लस 5 21x। 42 मीटर। मतलब इस समय फोर्थ ड्रॉप का हाइट क्या होगा? 42 मीटर। क्या अब बात समझ में आया कि ऊपर से गया? आ गया? बढ़िया बढ़िया। तो आज की सभा हम लोग यहाँ पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे कल वर्टिकल मोशन अंडर ग्रेविटी पढ़ने के लिए, जो कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग चैप्टर है। बुक में उस चैप्टर को सॉल्व करने का तकनीक पूरा मेरे को एकदम अच्छा नहीं लगता है, आई विल नॉट से समथिंग बैड, बट देन मेरा टेक्निक ऐसा है कि उसके क्वेश्चंस आप देख के मुंह उड़ानी कर सकते हो। ठीक है, तो उस चैप्टर को पक्का हम लोग करेंगे। फिर मिलेंगे कल शाम को 6 बजे। जय हिंद। Thank you, sir.